good afternoon, good morning, good evening. Welcome back to the channel, everyone. Today it is a second part of accounting equation, and after this we are going to come up just one or two more accounting equations ka part, and then we'll be through the chapter. In the earlier part we discussed about the balance sheet, we talked about the basic concepts of accounting equation, we saw how the equation is created, we solved one complete question along with balance sheet as well as solving it via accounting equation. So it is a request to you guys, if you haven't watched that video, just go back and watch that video first and then come back to this second video, because today I'm not going to explain you any concept. We are going to practice two questions so as to just brush up your things and to sharpen up your skills. Alright, so now straight away without wasting much time we are going to start up with the question. तो हमने पहले देख लिया था कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये आपकी एसेट की साइड है, तो हमने यहाँ एसेट स्टार्टिंग में लिख दिया. ये आपकी कैपिटल और लायबिलिटी की साइड है, सो यू कैन राइट कैपिटल एंड लायबिलिटी. ऑलराइट, दिस इज मार्जिन. ये प्रोफोर्मा पूरा बहुत मैटर करता है. अगर आप ये गलत बनाते हैं तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, आपके मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे द मोमेंट यू आर गोइंग टू क्रॉस 80 और 90 मार्क्स. इन छोटी छोटी चीजों पे एक एक क्रेडिट नंबर कटना शुरू हो जाता है ताकि आप इतना अच्छा स्कोर ना कर सकें. और ये चीजें ज्यादातर सीबीएसई में इतनी मुझे नहीं पता होती है नहीं होती है, बट इफ यू आर एन आईएससी स्टूडेंट I can swear by my words that it happens, because I was an ISC student and I used to skip these things. So when my teacher taught me कि नहीं बेटा आपको ये छोड़ना नहीं है, because this is the part of marking scheme. CBSE people are privileged enough कि आपको sample question papers मिलते हैं, आपको पता चल जाती है आपकी marking scheme, but ISC people don't get to know उनकी क्या marking scheme है, कौन से sample papers हैं. We don't have. The only thing or the only guide which we have for our plus 1 and plus 2 is just the previous year papers. We have to look towards them only, and then only we can solve the things. However, we have one benefit that we can use calculators in our examination, which CBSE does not allow. So let's start from here without wasting much time. Mr. A started business with cash ₹1 lakh. ठीक है, आपकी पहली क्या हुआ कि आपने कैश लेकर के आया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपकी एसेट का फॉर्म क्या होगा? कैश. कितने रुपए लेकर के आए आप? 1 लाख. अब आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि आप कैश लेकर के आए हैं और ये आपकी कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल, बिजनेस शुरू करने की कैपिटल. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू गेट आवर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, ये फॉर्मेट हर एक चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इफ यू आर न्यू, आई मस्ट सजेस्ट यू टू गो थ्रू द फर्स्ट वीडियो. इट माइट बी जस्ट 20-25 minutes long, but it is the basic, because in the upcoming videos and in this video I'm not going to teach you the concepts, we are going to solve the questions of 1 or 2 concepts, that is it. Now second question is purchase goods for cash rupees 20,000 and on credit rupees 30,000. आपने goods खरीदे, तो we already saw हम purchases लिख सकते हैं, हम stock लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं. So we are writing stock. ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपने गुड्स खरीदे 20,000 रुपए के और वो भी कैश में, तो 20,000 के आपने स्टॉक खरीदा प्लस वो कैश में खरीदा, तो 20,000 यहां से लेस कर लिए. अब आपने 30,000 के गुड्स और खरीदे पर वो क्रेडिट पर खरीदे. अब वो आपके डेटर हुए या क्रेडिटर? आई होप नाउ यू शुड बी एबल टू आंसर इट कि वो क्या है. वो आपके क्रेडिटर्स बनेंगे क्योंकि आपने खरीदा है 30,000. के ये गुड्स हैं, 20 के आप पहले खरीद चुके हो, तो कहना है कि 50,000 हो गया ये अमाउंट, तो स्ट्रेट अवे राइट 50,000. अब हम एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आपने पहले ही हमने सीख लिया था कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए. हमें पता है ये 1 लाख रुपीज है. ठीक है, अब इस 1 लाख रुपए में कहां पर हमारे चेंजेस आ रहे हैं? इस इक्वेशन के थ्रू आ रहे हैं. अब अगर आप इस साइड को देखोगे तो 20,000 नेगेटिव है, 50,000 आपने ऐड किए हैं, तो सिर्फ इस इक्वेशन की बात करेंगे तो 30,000 पॉजिटिव है. क्या मैं ये कह सकती हूँ?
क्योंकि 50 में से 20 लेस करें 30 बचे, तो इस जो इक्वेशन का टोटल आएगा वो 130 आएगा, 1 लाख ये और इस इक्वेशन का प्लस 30। सिमिलरली अब क्योंकि इस इक्वेशन का पॉजिटिव 30 है और यहाँ पर भी पॉजिटिव 30 है, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही होगी। ये एक तरीका है कि आप अपनी इक्वेशंस क्वेश्चन के बीच में भी चेक कर सकते हैं। और कैसे? वी सॉ इट कि जब आप इक्वेशंस में एडजस्टमेंट करते हैं, आप सिर्फ उन एडजस्टमेंट्स को प्लस माइनस करके देख लें कि वो आपकी इक्वल आ भी रही है या नहीं आ रही। 50,000 में से 20,000 लेस किया 30,000 और यहाँ पर पॉजिटिव में ही 30,000 है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपने कुछ सॉल्यूशन में प्रॉब्लम की है, आपको अपना स्टेप रिव्यू या रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 80,000 प्लस 50,000 1 लाख plus 30,000. Now it is 8 lakh plus 50,000, which is nothing but 1,30,000. Similarly, 1,30,000 left hand side is equals to right hand side. Now, goods sold for cash costing rupees 10,000 and on credit costing 15,000, both at a profit of 20%. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसीलिए इस क्वेश्चन को उठाया मैंने। वो क्या कह रहे हैं, आपको इसमें थोड़ा रफ वर्क लगेगा। वो क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपने 10,000 के गुड्स बेचे हैं, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। ठीक है, ये कैश में बेचा है आपने, ये रफ वर्क है आपका। और बाकी के जो है वो आपने क्रेडिट पर बेचे हैं। कितने के थे वो? 15,000 के। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको? इट इज 20%। ऑलराइट, अगर 10,000 का सामान था, आप 20% प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो 10,000 का 20% कितना होगा? 2,000 होगा। तो 10,000 प्लस 2,000 दैट इज 12,000 पे आपने सामान को बेचा है। क्लियर कि 10,000 का सामान था, हमने 12,000 रुपया कैश में बेचा। सिमिलरली जो 15,000 का सामान था, आपने उसमें 20% का प्रॉफिट लगाया। 15,000 का 20% कितना होगा? आप कैलकुलेट करें, ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ था, 3,000 होगा। 15,000 का 20% इज 3,000। तो जो 15,000 का था प्लस 3,000 आपने 18,000 का बेचा है। ठीक है, आपने ये कैश में बेचा है, ये क्रेडिट में बेचा है। इसको आप नोट डाउन कर लें, सिर्फ ये पोर्शन जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन किए ना, इसको ऊपर लिखें, सॉल्यूशन 2 नोट 1 ऐसे लिखो, नोट 1, और इसको नोट डाउन करो। अभी कैश हमारा ये कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, क्रेडिट है, कॉस्ट 15,000 है, सेलिंग प्राइस 18,000 है। यहाँ पे एक कॉलम बनाए, प्रॉफिट स्लैश लॉस करके लिखना, और यहाँ पे 2,000 लिखना, इनका प्रॉफिट 3,000 ऐसे लिखो। वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, नाउ अब आपने 10,000 और 15,000 के गुड्स बेचे हैं, तो आपने इन टोटालिटी 25,000 के गुड्स बेचे हैं। 10 प्लस 15 ये हम पहले भी देख चुके हैं कि इसमें से हम सिर्फ कॉस्ट लेस करते हैं। दिस विल बी 25,000 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब 10,000 वाला जो आपने बेचा था वो आपने प्रॉफिट पर बेचा है। कितना प्रॉफिट आया? 12,000 रुपए कैश आया। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 12,000 का मेरे पास कैश आया, या इसको हम एक सिंप्लीफाइड तरीके से भी लिख सकते हैं। वेट, आई एक्सप्लेन। आपने 10,000 का गुड्स बेचा, ऑलराइट, आपके पास 12,000 रुपए कैश आया, तो कैश के नीचे हमने प्लस कर दिया। अब यहां पर प्लस में बैलेंस है, क्योंकि 2,000 आपका क्या है? प्रॉफिट है। तो उसको आप कहां दिखाएंगे? कैपिटल में दिखाएंगे, तो 2,000 यहां प्लस करेंगे कैपिटल में। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो इक्वेशन ठीक बनी है नहीं बनी। यहाँ पॉजिटिव का 2,000 बैलेंस है, यहाँ पे भी पॉजिटिव 2,000 बैलेंस है। अब इसमें जो दूसरी एंट्री है आपकी वो क्या है कि जो 15,000 के गुड्स हैं वो भी आपने 20% प्रॉफिट पर बेचे हैं। तो इसमें से अब मैं 15,000 रुपीज लेस कर देती हूँ।
कितना कैश आया आपके पास? 18,000, ये पॉजिटिव में रहेगा। अब इनका डिफरेंस कितना है? 3,000, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही? इसमें 3,000 पॉजिटिव 3,000 पॉजिटिव, ऊपर 2,000 पॉजिटिव 2,000 पॉजिटिव, चेंजेस एक दूसरे की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब हम लोग हमारी एंड इक्वेशन लिख लेंगे। वो क्या आएगी? फाइनल इक्वेशन इज योर्स 1 2 3 8 9 10 8 9 10 11 1,10,000, इसमें से 25 घटा दो तो 25,000 ही बच जाएगा। तो आपका ये टोटल कितना आ रहा है? 1,35,000 हमारा एसेट्स का टोटल आ गया। यहां पर कितना आएगा हमारा? 1,05,000। सिमिलरली 30,000 है, तो ये कितना आ गया? 1,35,000। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यस और नो? यस। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? सही है। ठीक है, आप ये वीडियो को पॉज करें और अब इस क्वेश्चन को पूरा नोट डाउन कर लें। हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा? पहली दो एंट्री तो सिंपल थी। सेकेंड एंट्री में आपने गुड्स बेचे थे प्रॉफिट पे, प्रॉफिट परसेंटेज दी थी, तो आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस खुद से निकालना था। और इक्वेशंस को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, पॉज कर लें और इसको सॉल्व कर लें आप अपने रजिस्टर में। आई एम गोइंग टू इरेज इट नाउ। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, ठीक है। वीडियो पर अभी आपको क्वेश्चन अपीयर हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को पहले आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें और फिर मेरे साथ सॉल्व करें। पहले आप वीडियो को पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को अपनी किताब में लिख लें। ठीक है, आई होप आप सबने वीडियो पॉज करके नोटबुक में अपने में लिख लिया होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहली एंट्री क्या है? मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 रुपीज। आई होप अब मुझे इतनी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कैश में शुरू कर रहा है 80,000, तो हम कैश के अंदर डाल देंगे 80,000। किस फॉर्मेट में आया? कैपिटल, तो यहां पे मैं कैपिटल डाल देती हूं 80,000। ठीक है, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन आ गई 80,000 80,000। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, तो आपका स्टॉक की कॉलम खुल जाएगा। ₹20,000 स्टॉक आया है, क्रेडिट पर आया, तो आपकी लायबिलिटी में इंक्रीमेंट आएगा। कौन आएगा लायबिलिटी में? क्रेडिटर। कितने से? जितने से सामान खरीदा उतने से, 20,000। देखो दोनों साइड +20 +20, इक्वेशन बैलेंस्ड है अभी तक। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंट्री इज रेंट पेड 2,000 रुपीज। अब आपको बताया नहीं गया कि रेंट कैश में किया है या आउटस्टैंडिंग है। आप क्वेश्चन पढ़ें, लिखा हुआ है रेंट पेड, तो रेंट आप कैश में ही पे करेंगे। आप ऐसे तो कहते नहीं है कि यार मैं रेंट नहीं दे रहा, दाल चीनी चावल ले दो। दिस इज नो लॉन्गर अ बार्टर सिस्टम इन एग्जिस्टेंस। सो रेंट पेड 2,000, इट्स अंडरस्टूड कि कैश में से 2,000 रुपए लेस होंगे। अब बात है कि अब दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा। अगर आपने पहली क्लास अटेंड की है तब मैंने आपको प्रॉपर बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाया था। मैंने बताया था कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा
वो सब हम कैपिटल में से करेंगे जब तक वो हमारे लायबिलिटी में क्लासिफाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने रेंट पे कर दिया है तो आपकी एसेट कैपिटल ऑलरेडी कम हो चुकी है, तो इसलिए हम इसको कैपिटल में से लेस करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं से कमीशन मिलेगी तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, डिविडेंड मिलेगा तो कैपिटल में प्लस कर देंगे, अगर आपने ड्राइंग्स की है तो कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रेंट पे किया है कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप दिस बेसिक लॉजिक इज क्लियर। सी सॉल्विंग क्वेश्चंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट बट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, 78,000। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गए तो आप कितना भी मुश्किल क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आपको बेसिक ही नहीं क्लियर है तो कितना भी आसान क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज रिसीव्ड कमीशन 500 रुपीज। कमीशन आपको मिली है, मतलब कैश बढ़ेगा 500 से और आपकी कैपिटल भी बढ़ी आएगी, क्योंकि इंक्रीमेंट यहीं पर शो करेगी। ठीक है, ठीक है, नाउ लास्ट एंट्री इज विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज फॉर पर्सनल यूज ₹3000। आपने कैश विड्रॉ किया, कैश से कम करेंगे 3000। अब किस चीज के लिए विड्रॉ किया? पर्सनल इस्तेमाल, यानी कि ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स में से क्या घटता है? कैपिटल घटेगी आपकी 3000, बाकी सारे एरियाज अनअफेक्टेड रहेंगे। So the final equation of yours will be 75,500 plus 20,000. यहां पर क्या आएगा? 75,500 plus 20,000. See, left hand side is equals to right hand side, means answer is successful. इस वाले चैप्टर में, इस वाले लेक्चर में हम सम अप करते हैं। हमने सिर्फ एक दो नई एंट्रीज देखी थी, एक आपकी प्रॉफिट वाली देखी थी। आपने गुड्स कॉस्टिंग प्रॉफिट लगाया 20% का, सेलिंग प्राइस किया, तो प्रॉफिट लॉस का क्या इफेक्ट होता है? कैपिटल में चेंजेस आते हैं। सिमिलरली अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं, ड्राइंग्स कर ली, तो उनका कैपिटल पे किस तरीके से इफेक्ट आएगा। आई एम अगेन सेइंग build up your concepts. You can pause this video first and jot this answer down. ठीक है, always focus on to building up your concepts, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट्स नहीं बना रहे हैं तो आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एट द एंड एग्जाम से एक दिन पहले इतना सिलेबस होता है, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिवाइज ऑल्सो। बट अगर आप अपने अभी से बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे, आई कैन टेल यू आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना +1 में, ना +2 में, ना कॉलेज में। सीए करना है, सीएमए करना है, सीपीए करना है, कुछ भी करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इफ योर बेसिक्स आर करेक्ट। बट अगर आपको यही नहीं पता होगा डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कहाँ पे कौन सी चीज प्लस माइनस होगी, यू वोंट बी एबल टू गेट थ्रू एनीथिंग। दिस इज द टाइम एंड दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच यू शुड यूटिलाइज। अभी कोविड है, पीपल आर यूजुअली वेस्टिंग देयर टाइम, बट यू शुड नॉट डू दैट। ऑलराइट, इफ यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड अप योर बेसिक्स, you won't be able to get through 12th, and even if you got through 12th, you won't be able to build up your future in accounts if you want to, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स रह जाएंगे। फिर आपको वहां पर जाकर के मेहनत करनी पड़ेगी, लोग ऑलरेडी मेहनत करके आए हुए होंगे। Alright, so I'm just going to sum up the lecture. Thank you for visiting up the channel, and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel, like the channel, share the video as much as possible, let the knowledge spread to as much hands, to as much people as it can. And stay tuned for the upcoming videos. We are going to have just one more session for accounting equation, wherein we will do another practical questions. 2 more questions we are going to deal, and then we will be through the accounting equation. So take care. Bye bye.